Hello class, welcome to our LFCS online class. Myself Sandhya Tiwari, your SST teacher. In the previous class, we discussed about the topics Awadh, Bengal, and Awadh, Hyderabad, and the Sikhs and the Punjab. And also we discussed the topic the Jats, the Rajputs. These were the topics which we discussed in the previous class. And today we are going to start a new topic, that is our topic is Rise of Mysore. Okay. So let's start page number 87. Hyder Ali, who had started as a petty officer in the Mysore army. You know about Hyder Ali, who had started his life as or his career as a petty officer in where? In the Mysore army. Petty officer means in on a small post. He started his career as a small post इन द मैसूर आर्मी. ओके, उन्होंने अपनी जो शुरुआत थी मैसूर आर्मी में एक छोटे ऑफिसर के तौर पर की. Overthrew the ruling dynasty in AD 1760 and himself became the ruler of Mysore, and also he overthrew the ruling dynasty in the year AD 1760 and he became himself became the ruler of मैसूर. फिर वे खुद मैसूर के रूलर बने. हैदर अली रूल्ड ओवर मैसूर अप टू 1782. एंड जो हैदर अली थे मैसूर में कब तक उन्होंने राज किया? 1700 अप टू 1782. ओके. He proved to be a great administrator. He succeeded in overpowering the rebels and greatly improved his financial position. Means he proved himself to be a very great administrator. वो अपने आप को एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पर भी जैसे उसको प्रूव करने में कायम रहे. एंड ऑल्सो ही also succeeded in overpowering the rebels. Rebels means withdrawing, and greatly improved his financial problem also. Okay, he was much above caste and creed distinction. He was not thinking much about caste and creed. He appointed many Hindus to higher ranks. Because of this, he had appointed so many Hindu people as or you can say that on a higher post. उनके लिए कास्ट की कोई दिक्कत नहीं थी, कोई उनके अंदर भेदभाव नहीं था हिंदू या मुस्लिम में. इसलिए उन्होंने अपने समय काल में हिंदू को भी बड़े बड़े ऑफिसर यानी स्थान पर रैंक यानी पोजीशन दी थी. He was still greater as an army general. He was also great as a army general. He won many battles against the Marathas. उन्होंने कई सारे battles मराठा के ऊपर प्राप्त की है. And the Nizam of Hyderabad and also against the English. एक ही के ऊपर उन्होंने विजय नहीं हासिल की है, उन्होंने मराठास के ऊपर भी हासिल की है, निजाम के ऑफ हैदराबाद के ऊपर भी हासिल की है, प्लस इंग्लिश यानी इंग्लिश के ऊपर भी उन्होंने विजय प्राप्त की है. इन द फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार 1767-69 he defeated the English. In the first Anglo-Mysore war he was able to defeat English. Okay. He went up to Madras and gave a tough fight to the British. वे लड़ाई करते करते कहाँ तक चले गए थे? मद्रास तक चले गए थे और उन्होंने बहुत ही करार हार दी. किसको? ब्रिटिश को, इंग्लिश को. He showed his worth even during the second Anglo-Mysore war. उन्होंने अपनी ताकत, अपनी मजबूती सेकेंड एंग्लो वार में भी दिखाई थी. ठीक, सेम पोजीशन जिस तरह से उन्होंने फर्स्ट एंग्लो वार में दिखाई थी, उसी तरह से अपनी ताकत उन्होंने सेकेंड एंग्लो वार में भी मैसूर वार में दिखाई थी. ठीक.
He died in 1782 while this war was still going on. और उनकी मृत्यु बीच में ही हो गई थी जब सेकंड मैसूर वार चल रहा था। सेकंड एंग्लो मैसूर वार चल रहा था, उसी के बीच में 1782 में उनकी डेथ हो गई थी। ओके, हिज सन टीपू सुल्तान वाज एन ऑल्सो एबल रूलर। Tipu Sultan also a very great ruler as like his father. He is mentioned among the few Indian rulers who served his people well. He was also come under the famous ruler in the category of famous ruler who served his people very well. Like the others also served his people well. In the same way, he was also famous in this category. During his reign, trade and industry were encouraged and farmers were looked after well. And during his ruling time, उनके समय काल में भी ट्रेड और कॉमर्स और इंडस्ट्रीज बहुत ही प्रोग्रेस पे था एंड ऑल्सो वेर इनकरेज्ड, और भी प्रोत्साहन दिया जाता था किसको, फार्मर्स, एंड ऑल्सो दे लुक्ड आफ्टर वेल, उनको उनकी बड़ी ही अच्छे ढंग से देख रेख होती थी। Even foreign historians have described his state as prosperous with green fields. Historians ने भी उनके समय को बहुत ही अच्छी बखूबी से डिस्क्राइब किया है कि उनके समय काल में बहुत ही सुख समृद्धि थी, सब तरफ हरियाली छाई हुई थी, एंड अबाउंडिंग विद इंडस्ट्रियस पीपल, और लोग जो थे वो बहुत ही मेहनती थे, लेबोरियस थे, मेहनती। लेबोरियस इंडस्ट्रीज मीन्स क्या हो यहाँ पर है, लेबोरियस थे, बहुत पीपल भी लोग उस समय के बहुत ही लेबोरियस थे, मेहनती थे। न्यू सिटीज एंड टाउन्स, एंड ऑल्सो ही वॉज फाउंडेड सो मेनी न्यू सिटीज एंड टाउन्स। टीपू ट्राइड टू ब्रिंग अबाउट मेनी न्यू रिफॉर्म्स, उन्होंने कई सारे न्यू रिफॉर्म्स लाने की कोशिश की। ही इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू सीरीज ऑफ वेट एंड मेजर्स, उन्होंने नाप तौल को भी इंट्रोड्यूस करवाया। अ न्यू कैलेंडर एंड अ न्यू सिस्टम ऑफ कॉइनेज, उन्होंने नई कैलेंडर भी निकाली प्लस और कॉइनेज भी उन्होंने ही इंट्रोड्यूस किया। He was also an efficient army general and organized his army on European lines. And he was also able to organize his army in a very good way, as like the European, they managed their armies in a line. In the same way, he was also able to organize his army. He arranged his army with musket and bayonets. वे भी अपनी आर्मी को किस चीज़ से क्या कि अरेंज किए हुए थे, जैसे आप मस्केट बंदूक, और जैसे कि आप सर पर टोपी जैसा हेलमेट जैसा लगाते हैं ना, वो बचाव के लिए, उस चीज़ से भी उन्होंने उनकी उसको अरेंजमेंट किया हुआ था। विच वर मैन्युफैक्चर्ड इन हिज ओन स्टेट, जो कि उनकी खुद के स्टेट में मैन्युफैक्चर्ड यानी बनाया जाता था। Though he met defeat, but he went on fighting till his death. कई बार उनको हार भी मिली, लेकिन वो हार को ना देखते हुए वे लास्ट मोमेंट तक अपनी डेथ तक लड़ाई लड़ते रहे। He was a brave soldier and a great patriot. वो बहुत ही ब्रेव सोल्जर थे, प्लस ऑल्सो देशभक्ति भी थे। He never sided with the British against his He was never sided his army with own countrymen, and also means here it is he never sided whom, उन्होंने कभी साइड नहीं किया अपने कंट्री के अगेंस्ट में, यानी यूँ कह सकते हैं कि उन्होंने अपने देश का साथ दिया, अपने लोगों का साथ दिया, कभी ब्रिटिश सरकार का साथ नहीं दिया। टॉलरेंट रूलर यानी सब कुछ सहने वाला। ही गेव डोनेशंस एंड गिफ्ट्स टू द हिंदू टेम्पल्स फ्रॉम टाइम टू टाइम, एंड ही वाज आल्सो पेइंग डोनेशन फॉर द
construction of temples whenever there need. He was a far-sighted statesman. वो बहुत दूरगामी व्यक्ति थे, यानी बहुत दूर तक सोचने वाले व्यक्ति थे। टीपू सुल्तान वाज ऑल्सो नोन एज द टाइगर ऑफ मैसूर। उनको एक और नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? टाइगर ऑफ मैसूर। He is reputed to be a good poet. He was also a good poet. He had a fascination for learning. उनके अंदर एक जो कहते हैं आकर्षक थी, क्षमता थी। वे कुछ ज़्यादा कुछ लर्निंग करना चाहते थे, कुछ गेन करना चाहते थे, कुछ पढ़ना चाहते थे और आगे कुछ सीखना चाहते थे। इन एडिशन ही लर्न डिफरेंट लैंग्वेजेस। इसलिए उन्होंने कई सारे लैंग्वेजेस की स्टडी की। जैसे कि आपने देखा कि डिफरेंट लैंग्वेजेस, आपने मैथमेटिक्स भी लर्न किए, वो सीखा, एंड साइंस। हिज पर्सनल लाइब्रेरी कंसिस्टेड ऑफ मोर देन 2000 बुक्स इन डिफरेंट लैंग्वेजेस। उनकी खुद की लाइब्रेरी में बहुत सारी बुक्स थी, लगभग 2000 बुक्स थी। वो भी एक लैंग्वेज में नहीं थे, कई सारे लैंग्वेजेस में बुक्स थी। ओके, सो टुडे वी हैव completed this chapter, and in next class we will start civics portion, and I will give a question answer of previous chapter. So complete all the works in proper way. Okay, so today only this much. Thank you.